But in this matter, the order that is annexure P1 is under challenge, that is passed by the banking ombudsman, my lord. Yes. What has happened, my lord, this petitioner, he along with his wife took a loan in 2014 housing loan. And along with that, at the relevant time, my lord, a scheme under which is SBI Suraksha scheme, that is called, that the loan was insured. It was said that this amount is given, then in case of death of any of the co-sharer, the amount shall be paid by the bank. Now, in 2014, the amount 8 lakhs were sanctioned, and it's my extra additional amount of 62,000 that was also sanctioned. From 2014 2018, my lord, regular installment were being paid, my lord. Later on, the wife of the petitioner, who was a main loanee, my lord, she died. And it was informed to the bank also that she is no more. Therefore, and it was informed by the bank authority, local bank authority, that since the loan is insured, you are not required to pay anything. From 2018 to 2020, nothing came from the bank side. In 2020, my lord, this petitioner, she was flooded. And where is insurance clause? My lord, that my lord will find, my lord. It is not there, my lord. What happened? Fact life. Then in 2020, they flooded me with the notices. Then I informed that since this is an insurance clause and there was an the amount was insured, I am not required to pay that. Then for the first time, they informed me that that insurance that was taken in 2014, that was refused by the concerned authority on the ground that when a call was made to the insurer, there was no response. It was not informed before that. So I filed a complaint before the ombudsman as per the scheme. Ombudsman has before ombudsman, they admitted this fault. Ombudsman had admitted that this was not informed to the loanee, and now he says because I was not vigilant, therefore 50% liability has been imposed upon me. If my lord may come to the impugn order, that is annexure P1, yes, that my lord will find, my lord may come to the operative para directly. Now he is also retired, his wife expired due to cancer in 2018. My lord may come to P1, it starts from page number 15. Now my lord may come to page number 16, my lord, the operative para. बैंकिंग लोकपाल महोदय की टिप्पणी एवं निर्णय। मामले के तथ्यों से पता चलता है कि दोनों पक्षों शिकायत करते हैं एसबीआई की गलती है, जबकि आपको सह उधारकर्ता प्रत्येक वर्ष बकाया राशि के बारे में खुद को अवगत कराना चाहिए था तथा बीमा कंपनी ने बीमा प्रीमियम की पहली किस्त वापस करने के पश्चात बैंक को उधारकर्ता को स्पष्ट रूप से सूचित करना चाहिए था कि आवास ऋण का अब बीमा नहीं है। जुलाई 2018 में आपकी पत्नी की मृत्यु के बाद आपको एसबीआई से चुकती के लिए बची हुई राशि एवं मुक्त पॉलिसी की मांग करनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं हुआ, जिससे दोनों पक्षों की गलती प्रतीत होती है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर दोनों पक्षों को समान दायित्व तय कर बैंक को 50% राशि भुगतान करने की एडवाइजरी जारी की गई थी। बैंक ने एडवाइजरी का अनुपालन करते हुए सूचित किया कि आपके 50% बकाया राशि का भुगतान के पश्चात बैंक शेष 50% राशि का भुगतान कर ऋण खाते को बंद करेगा। आपको 50% बकाया राशि का भुगतान करने की सलाह दी जाती है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर ठीक तो है। नाउ माय लॉर्ड मे कम टू द नोटिस माय लॉर्ड। Yes. After 2018 my wife expired. Lokpal was liberal. Lokpal has been more liberal to the bank. No. Once wife, my lord. 50% of your loan has been waived off. My lord, that would have been a case, my lord, when my fault would have been there. The fault, my lord, may come to the notices which were given fault to me. of bank as well as client was there. No. My lord may come to, I have filed the account details also. There were two accounts. My lord may come to that document. It is an exact P3, my lord, page number 9. ये आपकी भी तो ड्यूटी थी कि आप अपना हमने बताया था ना 2018 के बाद 2020 तक कुछ नहीं बताया। इन्होंने अकाउंट भी 2018 में बंद किया। आपकी भी तो ड्यूटी थी। My duty was there to inform them. 2018 तक when my wife was there, a regular installment from her service account. She retired in 2016. तब तक उनके उससे होते थे, वे पेंशन अकाउंट से होते थे। You were not co-borrower. I was co-borrower, but I was second one. उनके अकाउंट से मतलब the loan was taken in her name. See, the entire deduction was being. You were also co-borrower. I was co-borrower. Immediately I informed. आपका वो where is the आप ये देखिए agreement, loan agreement कहाँ है? वो तो उनके पास ही रहता। आप ये देखिए जरा, इसमें P3 में आप आ जाइए। इसमें दो अकाउंट नंबर आपको दिखेंगे। आप बिल्कुल ऊपर देखेंगे। इट इज नॉट, ये जो आप इनका पेज नंबर 19 में P3 में देखेंगे अकाउंट नंबर 3393116540 फैमिली एसबीआई सुरक्षा HLTL उसी के तहत थे। नाउ इसके बाद आप पेज नंबर 23 में आ जाइए। सॉरी, पेज नंबर में कम टू 25, जिसके तहत ये 62,000 हमको इन्होंने सैंक्शन किया था। इसका आप नंबर देखिए तो टोटल डिफरेंट है, जिसमें इट स्टार्ट फ्रॉम 29/9/2014 व्हेन द अकाउंट वाज सैंक्शन, उसके बाद 19/10/2019। अब आप इसमें पीछे आ जाइए पेज नंबर 26 में। ये अकाउंट इन्होंने 2018 में पहली बार बंद किया।
That means my money was taken from my account. It's not against that they have not taken. अब इसके बाद जब हमको इन्होंने नोटिस भी दिया, मेलोन में सी दो नोटिसेस आफ्टर 2 years ऑफ डेथ ऑफ माय वाइफ, उसके बाद कोई इंस्टॉलमेंट को लेके इन्होंने P5 में आई है, पेज नंबर 28 में पहली बार 3 नोटिसेस हमको दिए इन्होंने मेलोन में। मेलोन में कम टू पेज नंबर 28, ये पहला नोटिस इज डेटेड 23/11/2020 जिसमें 8,62,000 इट वाज सैंक्शन। You filed the insurance as well as agreement, loan agreement. Otherwise, how your rights No, no. will be determined? When I file a complaint before the ombudsman, before ombudsman they पूरा ऑर्डर पढ़ेंगे, they admitted it कि इन्होंने हमको कभी बताया ही नहीं। 2014 से लेके आप 2020 तक हमको नहीं बता रहे हो। 2020 में फॉर द फर्स्ट टाइम आई केम टू नो, देन इमीडिएटली आई फाइल्ड अ कंप्लेंट बिफोर ombudsman and ombudsman has passed an order that is final order कि आप 50% दे दो। when it has come to on record कि I was never informed, otherwise I would have taken all steps on my side to get it sanctioned। और इसमें लिखा है क्या whether they have mentioned about the insurance? क्या इंश्योरेंस हाँ, इसमें लिखा है, कहाँ है? आप ये इम्प्यून ऑर्डर में माय लॉर्ड में फाइंड इट, मैं पढ़ देता हूँ। इट स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 50। यस, आपके पत्र की एक प्रति की बैंक को अभिमत निराकरण हेतु भेजी गई थी। बैंक ने सूचित किया है कि उक्त शिकायत के संबंध में हमारी रहनी शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार बिंदवार लेके कि शिकायत करते एवं उनकी पत्नी श्रीमती सरस्वती मिश्रा द्वारा संयुक्त रूप से हाउस लोन से राशि 8 लाख दिनांक 1/7/2014 जिसका खाता क्रमांक सच बैंक द्वारा हाउसिंग लोन शिकायतकर्ता एवं श्रीमती सरस्वती मिश्रा के संयुक्त नाम से स्वीकृत किया गया था। उक्त लोन में शिकायतकर्ता सहऋणी के रूप में ऋण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर है, अतः शिकायतकर्ता भी ऋणी है और ऋण अदायगी के लिए जिम्मेदार है। दोनों के नाम से कुल ऋण 8,62,000 स्वीकृत किया गया था, जिसमें 8 लाख हाउसिंग निर्माण हेतु एवं ₹62,000 ऋण रक्षा प्रीमियम हेतु स्वीकार किया गया था। फिर उसके बाद लिखते हैं हाउसिंग लोन खाता क्रमांक सच है जिसमें शिकायतकर्ता को 8 लाख वितरण किया गया। एक अन्य ऋण रक्षा क्रमांक सच बीमा प्रीमियम का भुगतान करने हेतु खोला गया था। दिनांक 29/9/2014 को ऋण रक्षा कवर प्रदान करने हेतु प्रीमियम SBI लाइफ को भेजा गया था। दे हैव ऑलरेडी डिडक्टेड द अमाउंट। उसके बाद लिखते हैं चूंकि बीमा प्रस्ताव स्वीकार करने के पूर्व बीमा कंपनी द्वारा टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बीमित व्यक्ति से लिया जाना था, शिकायतकर्ताओं के द्वारा निर्धारित समयावधि में कंफर्मेशन प्राप्त होने के कारण बीमा प्रस्ताव SBI लाइफ द्वारा प्रीमियम सहित बैंक को वापस कर दिया गया। आई वॉज नेवर इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस। इन 2014 दिस हैपेंड। From 2014-2018 रेगुलर इंस्टॉलमेंट वर बीइंग पेड बाय मी। और जब हमारी वाइफ की जुलाई 2018 में डेथ हुई मेरे लॉर्ड, हमने तब इनको तब बताया, तो 2 साल तक कोई एक्शन नहीं हुआ। you filed documents. Documents in regard to You filed your loan agreement whether you are co-borrower or not and what. नो, आई एम ए को-बोरोअर, ये तो उसी में आया। ये जो आपको मैं पढ़ के बता रहा हूँ, नहीं, उन्हीं का बैंक का स्टेटमेंट है। मैं जो आपको पढ़ के बता रहा हूँ, उन्हीं का टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस, उन्हीं का बैंक का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि साहब SBI लाइफ इंश्योरेंस इनका अलग कवर प्रदान कर, बोले हमसे पैसा ले लिया हमारे अकाउंट से 62,000 रुपया और वहां भेजा भी। अब आप हमको 6 साल तक नहीं बता रहे हो, जब वो अब ये भी रिटायर हो चुके। जब वाइफ की डेथ हो गई अचानक, जब इनको पता चला तो हमको 3 नोटिस दिए। व्हेन आई रिप्लाइड टू इट, देन फॉर द फर्स्ट टाइम आई वाज इन्फॉर्म कि साहब आपका तो वो प्रीमियम हमने सैंक्शन ही नहीं किया था, क्योंकि बैंक ने हमको वो कंसर्न इंश्योरेंस कंपनी ने लौटा दिया था। So once the ombudsman is admitting, seeing this fact that it was the bank which was at the fault. Now at this stage, my lord, when the petitioner he himself is retired, and it's not a case that I was defaulter. और अब इसके खिलाफ कोई अपील नहीं, हमने RBI को भी अपील करी इसकी, तो RBI सेट कि इसके खिलाफ कोई अपील नहीं होती। Then I am before my lord. अब इसके बाद ही हमारे खिलाफ सिक्योरिटाइजेशन एक्ट। दोनों पक्षों की गलती प्रतीत तो हमारी गलती तो कैसे है भाई? हम विजिलेंट थे, हमने 2018 में तुम्हें बता दिया था इनको कि हमारी वाइफ की डेथ हो गई। देन अथॉरिटी, मैंने लिखा है एफिडेविट में, अथॉरिटीज ने कहा कि सब नाउ सिंस यू आर कवर्ड देयरफॉर यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे सिंगल पेनी। इसलिए देखिए आप 2 साल तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 साल बाद 2020 में पहली बार पूरे नोटिस आ गए इनके। हमने उसके सब फिर जब कंप्लेंट करी एम्बर्समेंट के सामने, तो देन इम्प्यून ऑर्डर हैज बीन पास्ड। Therefore, I see that it was the entire, even I have written that some departmental action has been also taken against those officers. So I am not at the fault. You filed the documents. उसमें तो सर आई विल हैव टू सीक, बिकॉज हमारे नॉर्मली क्या होता है, आप बैंकिंग में वो देते नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट उन्हीं के पास रहते हैं। सारे जितने एग्रीमेंट्स होते हैं बैंक कभी आपको सेकंड कॉपी नहीं देता है। एंड इसकी एज आप देखें, इसकी जो पिटिशनर की एज आप देखें 75 ईयर्स के हैं ये।
He is also a retired employee. issue notices to respondents on payment of PF within 7 days. इसमें मिलोड आई से स्टेटस को कर दें, क्योंकि ये फिर सिक्योरिटाइजेशन एक्ट के तहत मिलोड देयर मनी इज सेफ 50, इनका पैसा तो ये हमसे बाद में भी इंटरेस्ट के साथ ले सकते हैं. अगर सपोज माय पिटीशन गोस, लेट अस सी व्हाट इज द बैलेंस ऑफ कनीस्ट इन माय फेवर मिलोड, ही विल बी द सफरर. एंड पर्टिकुलरली जब हमारी तरफ से कोई डिफॉल्ट होता तो आई वुड हैव बीन अ मैन दैट मैं तो मना ही नहीं कर सकता, बिकॉज वी साइन एवरीथिंग व्हेनेवर एन एग्रीमेंट इज साइन एवरीथिंग इज देयर. बट आपने प्रीमियम लेके इट्स चीटिंग ऑन वर्चुअली बैंक अथॉरिटी हैज चीटेड हिम. तो आप एक आप थोड़े दिन के सेव कर दें, क्योंकि ही वुड बी द सफरर. अब इनका पूरा बैंक का क्या किया, इनका पेंशन अकाउंट भी रोक रहे हैं उसके चक्कर में, इनका सिक्योरिटाइजेशन एक्ट के तहत उसको भी सीज कर लेंगे बाद में. इसलिए नो कोर्सिव एक्शन करें, उसके बाद विकेट कर देंगे. आई विल डू सो. अगर हम हमारी तरफ से कोई फाल्ट होती तो माय लॉर्ड में डिसमिस माय पिटीशन. is also directed to issue हमदस notices on आप कोई फिक्स डेट दे दे, तब तक नो कोर्सिव एक्शन, payment of PF within 7 days. Full तब stop. तक कोर्सिव एक्शन होगा. Petitioner is directed to file an affidavit regarding service of notices on respondent. Full stop. List the matter immediately after affidavit. Sir, let the matter be listed immediately after filing of affidavit of petitioner that notices has been served on respondents for consideration of interim relief. मतलब नो कोर्सिव एक्शन कर दे, बिकॉज आई वुड बी सफरर. इसमें नंबर 3 वुड नॉट बी ए नेसेसरी पार्टी, क्योंकि सफरर आप तो घर में रह रहे हैं, 50% आपका वैसे ही वेव ऑफ हो गया है. मतलब इसमें आप नंबर 3 जो है आरबीआई हैज, मतलब आरबीआई इज नॉट नेसेसरी It is पार्टी. public money. हाँ, मतलब पब्लिक मनी वाला माय लॉर्ड इज एब्सोल्युटली करेक्ट. अगर कवर नहीं होता, इसमें 1 और 2 को बस कर दें आप, क्योंकि दे आर द कंटेस्टिंग पार्टी. 1 और 2 को कर जी, नोटिस ओब्लाइज.